Good morning, friends. I welcome you to my third lecture on business mathematics. In our last class, we are discussing regarding measures of central tendency or average. We have discussed that measures of central tendency or average is all about finding out a single figure which will represent the entire series of data. That means in that case, a series of data is given. From that series of data, we have to find out a one single figure which will represent that series of data. That is known as average. So average is the central figure or key figure of a series. So we have to find out that central figure or key figure. Therefore, average is also known as measures of central tendency. Okay. Next, we have discussed different types of average. We have discussed that average may be of three major types. First, mean, median, mode. Another way of classification was that is positional average and mathematical average. We have discussed mathematical average is a type of average where the value of the average can be found out easily directly by applying a mathematical formula. But in case of positional average, first we have to find out a particular position and the variable which lies in that position becomes the average. So it's a lengthy process. In case of positional average, first we find out a particular position of an average, then we find out the variable which lies in that position and find out its value. So we have discussed mathematical average is of mean and positional average में हम पढ़ेंगे median and mode. Okay, so we have discussed mean. Mean generally means total number of items, total numbers of variables, total of all variables divided by number of items. That is known as mean. We have discussed. Then we have discussed mean can be classified into three parts. What are the three parts of mean? First, arithmetic mean. Then we have discussed harmonic mean. Then we have discussed geometric mean. So we are discussing regarding average. So in case we are discussing first regarding arithmetic average or arithmetic mean. In case of arithmetic mean, we are discussing that the data can be given in three forms. What are the three forms? The three forms were individual series, discrete series, and continuous series. We have discussed how to find out the average in all the series. Next, we have discussed regarding different methods of finding out arithmetic average. What are the methods? The methods were direct method, then shortcut method, then step deviation method. We are discussing all about that. Then we have solved some problems on arithmetic mean. So we will start our discussion from arithmetic mean. Let me first share my screen with you. Then we will discuss details regarding arithmetic mean. Okay. Okay, friends. We are discussing regarding measures of central tendency. In case of measures of central tendency, we means finding out a particular value which will represent the entire series of data. Okay. Next, we are discussing regarding measures of central tendency can be classified into three parts. What are the three parts? Mean, median, and mode. We have discussed. Then the mean can be classified into three parts. What are the three parts? Arithmetic mean, harmonic mean, and geometric mean. And we are discussing regarding arithmetic mean. So in case of arithmetic mean, we have discussed there are three types of series: individual series, discrete series, and continuous series. What is individual series? In individual series, only x will be given. What will be given? Only x will be given. Individual series में हमको सिर्फ x देगा. And what is discrete series? In case of discrete series, we will get x and f. And what is continuous series? In case of continuous series, x and f will be given, but x will be given in which form? It will be given in class interval form. What is class interval? We have discussed it will be given in 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 in that form.
Then we are discussing regarding arithmetic mean calculation in case of individual series. What are the methods? There were three methods. We have already discussed: direct method, shortcut method and step deviation method. So what is direct method? डायरेक्ट मेथड में कैसे मीन निकालते थे, मैं बात किया था. डायरेक्ट मेथड में मीन इज इक्वल टू समेशन x by n. What is x? X means variable. What is variables? Variables are those things which can be measured. It can be mark, it can be income, it can be height, it can be temperature, it can be anything. So direct method में it's very easy to find out mean. The formula is very simple, that is summation x by n. Then next one is shortcut method. What is shortcut method? The shortcut method is also known as assume mean method. In case of assume mean method, what we were doing, we have discussed. In case of assume mean method, first we have to take an assume mean from the series, that will be denoted as a is equal to assume mean. Then we have to calculate the d. D means deviation. Deviations were calculated x minus a. Next we calculate the mean with the help of a formula. Mean is equal to a plus summation d by n. Okay, up to this we have already discussed in our previous class. Today we will discuss regarding step deviation method of calculation of arithmetic mean. Okay, let's start calculating arithmetic mean by using step deviation method. Okay. Okay. Arithmetic mean by using which method? By using step deviation method. स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करके हम क्या निकालेंगे? अरिथमेटिक मीन. हाउ टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन? बाय अप्लाइंग स्टेप डेविएशन मेथड. वी विल सी स्टेप डेविएशन मेथड यूज करके कैसे अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं. ओके, नाउ प्लीज सी ये स्टेप डेविएशन मेथड. और प्रीवियसली हम कौन सा मेथड पढ़े थे? प्रीवियसली हम पढ़े थे शॉर्टकट मेथड. ये शॉर्टकट मेथड में हम क्या निकालते थे? डी निकालते थे. यहां पर भी डी निकालेंगे, लेकिन उसके बाद और एक एक्स्ट्रा स्टेप होगा. यहां पर डी तो निकाला जाएगा और डी में से कुछ कॉमन लिया जाएगा. और क्या निकाला जाएगा? डी डैश निकाला जाएगा. मैं समझाऊंगा डी डैश क्या है. D dash, so it is also known as D dash method. हम इसको कौन सा मेथड बोलेंगे? डी डैश मेथड. ऐसे बोलचाल के भाषा में हम इसको बोलते हैं डी डैश मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड. तो ये स्टेप डेविएशन मेथड में हाउ टू कैलकुलेट मीन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन? फर्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ मीन, देन वी विल डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ ए एग्जांपल. तो इन दिस केस मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन d dash by n into i. बेटा फॉर्मूला याद रहेगा. फॉर्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन d डैश बाई n into i. सो अभी एक एक करके समझेंगे. व्हाट आर द वेरिएबल्स यूज्ड इन दिस केस? व्हाट इज x? x बार क्या है? x बार इज इक्वल टू मीन. ओके, नेक्स्ट व्हाट इज a? ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है, हमको पता है ए इज इक्वल टू एज्यूम मीन. नेक्स्ट व्हाट इज डी? डी क्या है? डी है डी इज इक्वल टू, जैसे प्रीवियस मेथड में पढ़े थे, एक्स माइनस ए. व्हाट इज एक्स? एक्स है वेरिएबल, ए क्या है? एज्यूम मीन. सो वेरिएबल माइनस एज्यूम मीन, दैट इज नोन एज डी. वेरिएबल एक्स माइनस assume mean, that is known as d. Now what is d dash? D dash is equal to d divided by I. So what is I? I is equal to common figure from d. Common figure from d. d में से जो कॉमन फिगर जा सकता है उसको हम बोलते हैं d dash. तो I d dash is equal to d divided by I, where I is equal to common figure.
इसको हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेकर समझेंगे हाउ टू कैलकुलेट दी व्हाट मीन बाय यूजिंग which method, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड यूज करके कैसे हम क्या निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं। सपोज हम एक एग्जांपल लेंगे, हमको क्वेश्चन में दिया है फाइंड आउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल बोलता है फाइंड आउट मीन from the following marks of 5 students using step deviation method। स्टेप डेविएशन मेथड यूज करके तुम क्या करो, 5 स्टूडेंट्स का मार्क दिया हुआ है, उसका मीन निकालो। क्या क्या मार्क दिया हुआ है, द मार्क्स आर गिवन 205, देन 305, 405, 505 एंड 605। बेटा कितना स्टूडेंट्स का मार्क दिया हुआ है, कितना स्टूडेंट्स है, 5 स्टूडेंट्स है। 5 स्टूडेंट्स का मार्क दिया हुआ है, इसका मीन निकालो। कौन सा मेथड लगाकर, स्टेप डेविएशन मेथड लगाकर। बहुत इजी है। पहले क्या लिखेंगे, पहले हम उनका मार्क लिख लेंगे। व्हाट आर द मार्क्स, मार्क्स गिवन, मार्क्स को हम क्या बोलते हैं, मार्क्स को हम एक्स बोलते हैं, एक्स लिख दिया। क्या क्या है, पहला स्टूडेंट्स 205, तीसरा सेकेंड वाला 305, नेक्स्ट वाला 405, नेक्स्ट वाला 505, नेक्स्ट वाला 605। कोई डाउट है, मार्क्स आ गया। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट ये मार्क में से एक मार्क को हम एज्यूम मीन लेंगे। बेटा एज्यूम मीन किसको ले सकते हो, इसी में से किसी एक को एज्यूम मीन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी को भी एज्यूम मीन, जनरली हम बीच में से लेते हैं। सपोज हम यहाँ पर लिए एज्यूम मीन इसको, किसको, 305। 305 को क्या लिए, एज्यूम मीन। तो यहाँ पर लेंगे एज्यूम मीन इज इक्वल टू 305। नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट डी। डी मीन्स x माइनस ए। मैं बताया था x माइनस ए। 205 माइनस 305 कितना आएगा, 205 माइनस 305 माइनस 100। 305 माइनस 305 कितना आएगा, 0। 405 माइनस 305 कितना आएगा, 100। नेक्स्ट 505 माइनस 305 कितना आएगा, 200। नेक्स्ट 605 माइनस 305 कितना आएगा, 300। बेटा प्रीवियस मेथड में, शॉर्टकट मेथड में हम इतना निकालते थे, लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड में हम एक मेथड और लेंगे। हमको देखना है ये जो डी का फिगर निकला है, इसमें से कुछ कॉमन जा सकता है क्या। हाँ हमको पता है इसमें से कॉमन क्या जा सकता है, सबसे बड़ा कॉमन क्या जा सकता है, 100 जा सकता है। तो वो कॉमन फिगर क्या है, 100। तो आई इज इक्वल टू 100। फिर हम निकालेंगे डी डैश। व्हाट इज डी डैश, डी डैश इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई आई। तो माइनस 100 बाई 100 कितना रहेगा, -1। यहाँ पर रहेगा 0, यहाँ पर रहेगा 1, वहां पर रहेगा 2, यहाँ पर रहेगा 3। हाँ डी डैश एक बार निकल गया। अभी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डालेंगे और मीन निकालेंगे। मैं समझाया था व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। हम देखे थे फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था अभी, अच्छा फॉर्मूला हम पढ़े थे अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। फॉर्मूला था मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डैश बाय एन इनटू आई। मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डैश बाय एन इनटू आई। ये फॉर्मूला डालेंगे और वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो निकालेंगे मीन का वैल्यू कितना रहेगा, दैट इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस समेशन डी डैश बाई एन इंटू आई। ये फॉर्मूला है। नाउ व्हाट इज ए कितना है, एज्यूम मीन, एज्यूम मीन लिए हैं 305। अभी हमको एक चीज निकालना है, समेशन डी डैश, डी डैश का टोटल।
अभी यहाँ पर निकाल देते हैं डी डैश का टोटल। डी डैश का टोटल को बोलते हैं समेशन डी डैश। समेशन डी डैश कितना आएगा, 3 2 5 1 6, 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 हो गया 5, तो 305 प्लस समेशन डी डैश। समेशन डी डैश है 5। अच्छा, इस क्वेश्चन में एन कितना है, गिन लेंगे 1 2 3 4 5, तो एन इजिकल टू 5। एन कितना है, 5 है, तो एन अगर 5 है तो यहाँ पर बाई 5 कर देंगे, बाई 5 इंटू आई। आई कितना है, आई हम लिखे हैं आई इजिकल टू 100 इंटू 100। बेटा कितना आता है, 305 प्लस 5 बाई 5 1, 1 इंटू 100 100। तो what is the value coming? The value coming is 300 plus 5 plus 100, that is equal to 405. This is the mean as per which method? Mean as per step deviation method. तो स्टेप डेविएशन मेथड डालकर कैसे मीन निकाल सकते हैं हम देख लिए। कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला बहुत इजी है। फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डैश बाई एन इंटू आई। ओके, so this is regarding step deviation method. Okay, so individual series आपका ओवर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन से सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज के बारे में। तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या क्या हुआ, इंडिविजुअल सीरीज का हम फॉर्मूला और एक बार रिपीट कर देंगे और एक बार रिवाइज कर देंगे, फिर हम डिस्क्रीट सीरीज में जाएंगे। ओके, इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था इंडिविजुअल सीरीज हम पढ़ रहे थे, मीन कैलकुलेशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, डायरेक्ट मेथड मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन। अच्छा, डायरेक्ट मेथड में। शॉर्टकट मेथड में मीन कैसे निकला, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी बाई एन। स्टेप डेविएशन मेथड में मीन कैसे निकला, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डैश बाई एन इंटू आई। Okay, this is the formula for which method, step deviation method. Okay, so this is the crux of our discussion in case of which method, individual series mean calculation. Okay, इसको आप लिख दीजिए summary, यहाँ पर लिखिए summary of individual series. समरी ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। ओके, कौन सा मीन, किसका, अरिथमेटिक मीन का। अरिथमेटिक मीन क्या समरी पढ़े, 3 फॉर्मूला हमारा समराइज करना है। पहला डायरेक्ट मेथड। व्हाट इज डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में कैसे निकाले मीन, डायरेक्ट मेथड में मीन निकला मीन इज इक्वल टू समेशन x by n. Okay, next second one is which method, shortcut method. What is shortcut method, shortcut method को भी बोलते हैं assume mean method और d वाला मेथड। तो ये d वाला मेथड है। तो d वाला मेथड में कैसे निकालते हैं, मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, a प्लस समेशन d बाई n। अभी पढ़ेंगे लास्ट वाला मेथड, कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, इसको भी हम बोलते हैं कौन सा मेथड, डी डैश वाला मेथड। तो डी डैश वाला मेथड में कैसे निकालते हैं मीन, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डैश बाई एन इंटू आई। दिस इज द फॉर्मूला। बेटा ये हमारा समरी है पूरा डिस्कशन का। ये कौन सा सीरीज गया, अरिथमेटिक मीन का कौन सा सीरीज का समरी है, ये अरिथमेटिक मीन का इंडिविजुअल सीरीज का समरी है। ओके, समरी ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, यहां तक डिस्कशन हो गया। तो इंडिविजुअल सीरीज का 3 फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला का डिस्कशन हो गया। अभी हम बात करेंगे कौन सा सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में आपको सिर्फ एक्स देता है, डिस्क्रीट सीरीज में एक्स देगा, उसके साथ एफ देगा। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन। तो अभी देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज क्या है और डिस्क्रीट सीरीज में कैसे हम क्या कर सकते हैं,
मीन निकाल सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। तो अरिथमेटिक मीन in case of discrete series, अंडरलाइन करेंगे। सो व्हाट इज डिस्क्रीट सीरीज पहले लिखेंगे, फिर अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं लिखेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, राइट डाउन, इन केस ऑफ discrete series, variables, what is variables? variables को क्या बोलते हैं? x and frequencies f is given in question। क्वेश्चन में क्या देगा? x देगा और क्या देगा? f देगा, is given in question। तो क्वेश्चन में x देगा, सपोज x है मार्क, फिर है नंबर ऑफ स्टूडेंट n, f निकालेंगे, f है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो f कितना दिया हुआ है? x दिया हुआ, फिर f दिया हुआ है, f है नंबर ऑफ स्टूडेंट। इस तरह का सीरीज देगा, x देगा, f देगा। सपोज x है 10 मार्क, 10 मार्क रखे हैं कितना? सपोज 10 मार्क रखे हैं 3 स्टूडेंट्स, 15 मार्क, 15 मार्क रखे हैं 2 स्टूडेंट्स, और 20 मार्क, 20 मार्क रखे हैं सपोज 5 स्टूडेंट्स। इस तरह से अगर सीरीज देगा, x देगा और f देगा, इसको हम बोलेंगे कौन सा सीरीज? डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, उसको हम लिखेंगे। तो इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, in case of discrete series, n is equal to, n means total number of items, total number of items or students is equal to summation f। तो यहां पर n कैसे गिनती करके लड़का गलती कर देता है, 10 1 2 3 बोलते हैं n is equal to 3, कुछ लड़का लिख देता है n is equal to 3, ये n is equal to 3 गलत थे। डिस्क्रीट सीरीज में हमेशा n कैसे निकलेगा? 10 कितने बार है? 3 बार, तो ये 3 प्लस 15 कितने बार है? 2 बार, तो 3 प्लस 2 हो गए 5। 20 कितने बार है? 5 बार, तो 3 2 5 और 5, तो इसका मतलब n यहां पर निकलेगा, n इज इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 5 10। बेटा किसको समझ में नहीं आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर n इज इक्वल टू क्या है? समेशन f, ये चीज याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। n क्या है? समेशन f, टोटल ऑफ f को मिला दो, जो आएगा n है। तुम अगर ऐसे 1 2 3 करके गिनती कर दोगे जैसे इंडिविजुअल सीरीज में किए थे, वो गलत हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा, और समेशन f करोगे वो करेक्ट होगा। दिस इज ए करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ n इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। बेटा समझ में आ रहा है? तो अभी क्या करेंगे? डिस्क्रीट सीरीज में हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज बाय यूजिंग 3 मेथड्स। क्या क्या मेथड्स है? डायरेक्ट मेथड, देन शॉर्टकट मेथड, देन स्टेप डेविएशन मेथड। तो लिखेंगे, देखो कैलकुलेशन ऑफ मीन, कौन सा सीरीज? डिस्क्रीट सीरीज। बेटा कौन सा मेथड लगाएंगे? पहले पढ़ेंगे वो मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। पहले डायरेक्ट मेथड,
डायरेक्ट मेथड यूज करके कैसे हम मीन निकाल सकते हैं इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। डायरेक्ट मेथड यूज करके मीन निकालने का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू, बेटा इन इंडिविजुअल सीरीज में मीन का फॉर्मूला क्या था? मीन का फॉर्मूला था समेशन एक्स बाई एन, ये फॉर्मूला था इंडिविजुअल सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज में क्या फर्क है? एक ही फर्क है, वहां पर एफ नहीं था, यहाँ पर एफ है। तो यहाँ का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला में, इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मूला में सिर्फ किसको बिठा दो? एफ को बिठा दो, फॉर्मूला आ गया। तो फॉर्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाई एन। तो व्हाट इज एफ एक्स? एफ इंटू एक्स, दैट इज नोन एज एफ एक्स। तो फॉर्मूला आ गया डायरेक्ट मेथड का। मीन का फॉर्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाई एन। समेशन एफ एक्स बाई एन को हम क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज एक्स? एक्स इज इक्वल टू वेरिएबल, समझाया था। नाउ व्हाट इज एफ? एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी। एंड व्हाट इज एन? बहुत बार बोला हूं, ये डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूअस सीरीज हो, एन इज इक्वल टू समेशन एफ। समेशन एफ मतलब टोटल ऑफ एफ, दैट इज नोन एज समेशन एफ। ओके, एक एग्जांपल लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो हाउ टू कैलकुलेट द मीन इन केस ऑफ व्हिच सीरीज? इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। सपोज हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है द मंथली इनकम, राइट डाउन द क्वेश्चन। The monthly income of 10 employees monthly income of 100 employees working in a factory are as below. क्या दिया हुआ है? एक फैक्ट्री में 100 आदमी काम कर रहे थे, उनका मंथली वेज दिया हुआ है। ओके, क्या क्या वेज है, कौन सा है? मंथली वेज, पहले लिखेंगे मंथली वेज, फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉय, मंथली वेज, फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ना मंथली वेज दिया हुआ है फर्स्ट 2000, 3000, 4000, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है 20, 50 और 30। बेटा अभी यहां पर देखकर बोलो व्हाट इज वेरिएबल, यहां पर क्या बदलता है? हर एम्प्लॉय में क्या बदलता है? वेज बदलता है। तो अगर वेज बदलता है, वेरिएबल क्या है? यहाँ पर वेरिएबल है वेज, तो वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? हम वेरिएबल को एक्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन में एक्स दिया हुआ है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय मतलब 2000 कितने लोग रखे हैं? 20 लोग रखे हैं। तो 2000 कितने बार रिपीट हुआ है? 20 बार रिपीट हुआ है। तो दीज आर रिपीटेशन। 3000 कितने लोग रखे हैं? 50 लोग रखे हैं। तो 3000 कितने बार रिपीट हुआ है? 50 बार रिपीट हुआ है। 4000 कितने लोग रखे हैं? 30 लोग रखे हैं। तो 4000 कितने बार रिपीट हुआ है? 30 बार रिपीट हुआ है। तो ये रिपीटेशंस को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो एक्स क्वेश्चन में दे दिया है, एफ क्वेश्चन में दे दिया है, हमको क्या करना है? एफ एक्स निकालना है, समेशन एफ एक्स बाई एन, इसका एवरेज आ जाएगा। ओके, इसको देखेंगे कैसे सॉल्व होता है, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ प्लीज सी, एक्स को लिख दो पहले, एक्स वैल्यू, व्हाट इज एक्स वैल्यू? एक्स वैल्यू दिया हुआ है 2000, एक्स वैल्यू दिया हुआ है 3000, देन एक्स वैल्यू दिया हुआ है 4000, 2000, 3000, 4000। फिर एफ वैल्यू दिया हुआ है, व्हाट इज एफ वैल्यू? एफ वैल्यू कितना है? एफ वैल्यू है 20, 50, 30। नाउ व्हाट इज एन? एन इज द टोटल ऑफ एफ, टोटल ऑफ एफ, इसका समेशन एफ इज इक्वल टू एन। समेशन एफ कितना है? समेशन एफ अभी निकाल लेंगे।
50 30 80, 80 20 कितना हो रहा है 100। क्वेश्चन में अभी हमको क्या निकालना है, समेशन एफएक्स निकालना है। तो बहुत इजी है, समेशन एफएक्स, तो पहले एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, एफएक्स निकाल दो। व्हाट इज एफएक्स, एफ को एक्स में मल्टीप्लाई कर दो, 2000 को कितने में गुना करो, 20 में गुना करो, 2000 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 40,000। ये 3000 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 1,50,000। 4000 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 1,20,000। सो व्हाट इज समेशन एफेक्ट्स, इसका टोटल को बोलेंगे समेशन एफेक्ट्स। इसका टोटल कितना आता है, इसका टोटल आता है 3,10,000। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मीन। मीन कैसे निकलेगा, हमको पता है मीन का फॉर्मूला, मीन इजिकल टू, फॉर्मूला क्या है, मीन इजिकल टू, फॉर्मूला है समेशन एफेक्ट्स बाय एन। अच्छा, समेशन एफेक्ट्स कितना है, समेशन एफेक्ट्स है 3,10,000 अभी निकाले थे, 3,10,000 बाई एन। एन कितना है, एन यहाँ पर दिया हुआ है समेशन एफ 100, 3,10,000 बाई 100, तो कितना आता है 3,10,000 बाई 100, दैट इज इक्वल टू ये 2 जीरो, ये 2 जीरो काट दो, 3,100। तो हमारा मीन का वैल्यू आ गया 3,100। तो दिस इज आवर मीन। बेटा किसको समझ में नहीं आया, तो यहाँ पर क्या दिया, एक्स दिया, एफ दिया, एक्स 2000 3000 4000 दिया, एफ दिया 20 50 30, तो एफ एक्स निकाल देंगे। एफ को एक्स में मल्टीप्लाई कर दिए, 2000 को 20 में मल्टीप्लाई किए 40, 30,000 को 50 में मल्टीप्लाई किए 1.5 लाख, 4000 को 30 में मल्टीप्लाई किए 1,20,000, समेशन एफ एक्स निकाल दिया 3,10,000। फिर मीन निकाला, मीन का फॉर्मूला डाला, मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाई एन। समेशन एफ एक्स कितना है 3,10,000 बाई एन कितना है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एन है, एन इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ एफ डिस्क्रीट सीरीज में, तो ये हो गया 100। तो 3,10,000 बाई 100 कितना आया 3,100। तो मेरा फास्ट फॉर्मूला ओवर हो गया। फास्ट फॉर्मूला क्या था, फास्ट फॉर्मूला था डायरेक्ट मेथड में कैसे मीन निकलेगा डिस्क्रीट सीरीज में, फॉर्मूला था मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाई एन। तो हमारा 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड ओवर हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा मेथड, शॉर्टकट मेथड। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो अभी हम जाएंगे कौन सा मेथड में, शॉर्टकट मेथड में। ओके, तो देखेंगे शॉर्टकट मेथड में कैसे क्या निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं। यही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे शॉर्टकट में, यही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड में। तो लिखेंगे नेक्स्ट calculation of mean, which method, shortcut method। बेटा शॉर्टकट मेथड को भी बोला जाता है assume mean मेथड, assume mean मेथड, या जिसको बोलचाल के भाषा में हम बोलते हैं कौन सा मेथड, डी वाला मेथड, assume mean मेथड या डी मेथड में कैसे निकालेंगे क्या, मीन। ओके, नाउ प्लीज सी, हमको पता है कैसे हम निकाले थे मीन इंडिविजुअल सीरीज में। फॉर्मूला क्या था, मीन था शॉर्टकट मेथड में ए प्लस समेशन डी बाई एन, ये फॉर्मूला था। लेकिन हमको पता है यहां पर ये इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला था। डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज में एक ही फर्क है, कौन सा फर्क है, यहाँ पर एफ आ जाएगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला में हम क्या इंसर्ट कर देंगे, एफ। तो फॉर्मूला आ गया हमारा, क्या फॉर्मूला है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी बाई एन। सो व्हाट इज दी वेरिएबल्स हम बात करेंगे अभी। एक्स बार का मतलब क्या है, मीन, तो एफ क्या है, एफ का मतलब पहले एक्स बार क्या है देखते हैं, फिर एक एक करके देखेंगे। ओके, पहले एक्स बार क्या है देखते हैं। व्हाट इज एक्स बार, एक्स बार का मतलब मीन। ओके, व्हाट इज ए का मतलब एज्यूम मीन, तो इसमें हमको एक एज्यूम मीन लेना पड़ेगा।
assume mean. Now what is f? f का मतलब क्या है? f का मतलब है फ्रीक्वेंसी। बेटा डी का मतलब क्या है? डी में समझाते हैं, डी इजिकल टू डेविएशन। डेविएशन कैसे निकालते हैं? एक्स माइनस ए, वेरिएबल से अज्यूम मीन को माइनस कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा क्या? एक डी। डी मीन्स डेविएशन। तो अभी जो पिछले वाला क्वेश्चन किए थे उसको अभी सॉल्व करेंगे। किसमें? कौन सा मेथड में? ये वाला मेथड में। कौन सा? शॉर्टकट मेथड में। पिछले क्वेश्चन में क्या क्या दिया था हमको? एक्स दिया था, एक्स वेज था, एफ दिया था, एफ दिया था नंबर ऑफ एम्प्लॉय, एक्स था, एफ था। तो एक्स क्या था, एक्स एफ क्या था? तो हम देखेंगे एक्स था डेली वेज या मंथली वेज, मंथली वेज, और यहां पर था नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ये था क्वेश्चन। अच्छा, ये मंथली वेज कितना दिया था? देखेंगे कितना दे रहा था। ओके, क्वेश्चन कहां पर था? हाँ, 2000, 3000, 4000 और था 20, 50, 30। 2000, 3000, 4000, 20, 50, 30। हमको पता है वैल्यू निकलेगा 3100, लेकिन ये डायरेक्ट मेथड में निकाले थे। अभी हम निकालेंगे कौन सा मेथड में? स्टेप डेविएशन मेथड में, ये शॉर्टकट मेथड में। फिर पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। तो क्वेश्चन उतार देता हूं। एक्स दिया था 2000, फिर दिया था कितना? 3000, नेक्स्ट दिया था कितना? 4000। फिर एफ दिया था, एफ कितना? 20, नेक्स्ट था 50, नेक्स्ट था 30। हमको पता है, दीज आर द फिगर्स। नाउ व्हाट इज एन? मैं बताया था एन इजिकल टू समेशन एफ। इसको मिला दो, समेशन ऑफ 20, 50, 70, 70, 30, 100। ये निकल गया था। अभी हम क्या करेंगे? अभी एक अज्यूम मीन लेंगे। व्हाट इज अज्यूम मीन? अज्यूम मीन किसी को भी ले सकते हैं। अभी अज्यूम मीन ले लो, ए अज्यूम मीन ले लो। किसको अज्यूम मीन लोगे? तुम किसी बीच में एक फिगर को ले लो, 3000 को अज्यूम मीन ले लो। तो हम डेविएशन निकालेंगे, डी इजिकल टू एक्स माइनस ए। एक्स कितना है? 2000। तो अज्यूम मीन किसको लिए? अज्यूम मीन लिए 3000 को। तो अभी डी निकालेंगे, डी इजिकल टू एक्स माइनस ए। एक से 2000, ये है 3000। 2000 माइनस 3000 कितना आता है? 2000 माइनस 3000, तो कितना आएगा? माइनस 1000। अच्छा, यहाँ पर 3000 माइनस 3000 कितना आएगा? 0। यहाँ पर 4000 माइनस 3000 कितना आएगा? 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे? हमको निकालना है फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? जो मीन इजिकल टू ए प्लस समेशन एफ डी बाई एन। तो एफ डी निकाल, एफ को डी में मल्टीप्लाई कर दो, एफ डी निकल जाएगा। एफ कितना है? एफ है 20, डी है माइनस 1000, तो हो गया माइनस 20,000। अच्छा, ये है 3000, ये हो गया 0, समथिंग इंटू 0 इजिकल टू 0। और ये 4000, ये है 1000, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 4000 को नहीं, ये है कितना? ये 20 माइनस 1000, 20,000। 50 इंटू 0, 0। 30 इंटू 1000, 30 इंटू 1000 कितना आ जाएगा? 30 इंटू 1000 आ जाएगा 30,000। नाउ यू कैलकुलेट समेशन एफ डी। बेटा समेशन एफ डी कितना आ रहा है? मिलाओ, 30,000 माइनस 20,000। 30,000 से 20,000 गया तो कितना आ गया? 10,000। अभी हम ये फॉर्मूला में इसको डाल देंगे और वैल्यू निकल जाएगा। व्हाट इज मीन? मीन इजिकल टू ए प्लस समेशन एफ डी बाई एन। नाउ प्लीज सी व्हाट इज ए। ए कितना है? यहां पर निकाल देता हूं। ओके, सो व्हाट इज मीन? मीन निकालेंगे अभी। मीन कितना हो गया जाएगा? मीन इजिकल टू ए प्लस समेशन डी बाई एन। ए प्लस समेशन डी बाई एन।
ओके, समेशन डी कितना है, ए कितना है, ए इज इक्वल टू एज्यूम मीन। एज्यूम मीन कितना लिए थे, यहाँ पर देखेंगे, एज्यूम मीन लिए थे 3000 प्लस समेशन डी कितना है, समेशन एफ डी, फॉर्मूला है एफ डी, तो समेशन एफ डी, तो व्हाट इज समेशन एफ डी, समेशन एफ डी यहाँ पर निकाले कितना 10,000 बाई एन, एन कितना है, एन यहाँ पर निकला 100, तो कितना आता है 3000 प्लस 10,000 बाई 100, ये 20, ये 20 कट गया, तो बचा है 3000 प्लस 100, 3100। तो ये वाला मेथड में वैल्यू कितना आया, 3100। ओके, अभी हम पिछले मेथड में, ये कौन सा मेथड है, ये है कौन सा स्टेप, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में वैल्यू 3100, डायरेक्ट मेथड में भी वही वैल्यू आया था या नहीं देखेंगे, डायरेक्ट मेथड में भी वही वैल्यू आया था 3100। ओके, तो डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, कोई जो भी मेथड डालते हो डालो, लेकिन वैल्यू वही सेम आएगा, यहाँ पर 3100। तो अभी हम दो मेथड पढ़ चुके हैं, कौन कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड पढ़ दिए हैं, शॉर्टकट मेथड पढ़ दिए। अभी नेक्स्ट थर्ड मेथड पढ़ेंगे, वो थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, सो अभी हम पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट मीन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड यूज करके कैसे मीन निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे, हेडिंग करो, कैलकुलेशन of mean, which mean arithmetic mean, by using which method, step deviation मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड को हम बोलते हैं बोलचाल की भाषा में कौन सा, डी डैश मेथड। बेटा कौन सा सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे क्या निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं। ओके, कैलकुलेशन ऑफ मीन, अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड बाय डी डैश मेथड, डिस्क्रीट सीरीज। मैं बताया था डिस्क्रीट सीरीज का कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला याद रखेंगे फिर प्रॉब्लम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू, बेटा तुमको डायरेक्ट मेथड का डी डैश वाला फॉर्मूला याद होगा, ए प्लस समेशन डी डैश बाई एन इंटू आई, ये मेथड फॉर्मूला पढ़ाया था। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज ऐड हो जाएगा, डी डैश के बदले में क्या लिखेंगे, एफ डी डैश, फॉर्मूला आ गया, मीन इजिकल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश बाई एन इंटू आई, दिस इज द फॉर्मूला। तो क्या क्या फॉर्मूला में है, हम क्या क्या है लिख लेंगे, एक्स बार क्या है, एक्स बार इजिकल टू मीन, व्हाट इज ए इजिकल टू एज्यूम मीन, okay, now what is f is equal to frequency, what is d is equal to x minus a, what is a means assume mean, now what is d dash, मैं बड़ा पढ़ा चुका हूं, d dash क्या है, d डिवाइड बाई i, so what is I is equal to common figure from d, common figure from d, common figure from d में से common figure. So these are the things we will use this and find out the step deviation method में कैसे हम क्या कर सकते हैं, arithmetic mean निकाल सकते हैं। Okay, now please see, वही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो वाला प्रॉब्लम किए थे बाय यूजिंग व्हिच मेथड, बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। तो क्या क्या प्रॉब्लम था, वो जो प्रॉब्लम था पहले उसको उतार देंगे, फिर जाकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम था ओके, मंथली वेज था, मंथली वेज जिसको बोलेंगे एक्स। मंथली वेज में क्या क्या था, मंथली वेज में था आपका 2000, फिर था कितना 3000, फिर था कितना 2000 3000, फिर था 4000, 2000 3000 4000, फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितना था, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को हम बोलेंगे एफ। एफ क्या क्या था, एफ था आपका क्वेश्चन में 20, फिर था 50,
फिर था 30, 20 50 30, 20 50 30 मिलकर कितना होता है, एन हम तुरंत निकाल लेंगे, एन इज इक्वल टू समेशन एफ दैट इज इक्वल टू 50 30 80, 80 20 100। ओके, नाउ एक्स दिया था, एफ दिया था, अभी क्या करेंगे, एक एज्यूम मीन लेंगे। सपोज एज्यूम मीन कितना लिए थे, एज्यूम मीन हो गया, सपोज एज्यूम मीन लेंगे, कितना लिए थे, एज्यूम मीन को ए बोलते हैं, ए इजिकल टू, सपोज ए इजिकल टू 3000, 3000 को एज्यूम मीन लिए, इसको एज्यूम मीन लिए, एज्यूम मीन लिए, तो डी निकालेंगे, डी इजिकल टू एक्स माइनस ए, डी निकल गया, तो डी कैसे पहले निकालेंगे, तो तीन है, पहला केस एक्स कितना है 2000 है, 2000 माइनस 3000 कितना था, माइनस 1000, फिर 3000 माइनस 3000 कितना था, 0, फिर 4000 माइनस 3000 कितना था, 1000। फिर अभी यहां पर एक चीज निकालेंगे जिसको बोलेंगे डी डैश। व्हाट इज डी डैश, डी डैश इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई आई। अच्छा, डी में से कुछ कॉमन जा सकता है क्या, हाँ डी में से एक चीज कॉमन जा सकता है, कौन सा चीज कॉमन जा सकता है, डी में से कॉमन जा सकता है कितना, 1000, तो आई इज इक्वल टू 1000, तो कितना हो जाएगा, डी डैश माइनस 1000 बाई 1000 माइनस 1, 0 बाई 1000 0, 1000 बाई 1000, बेटा 1000 बाई 1000 कितना हो जाएगा, 1। लेकिन हमको चाहिए एफ डी डैश, अगर एफ डी डैश चाहिए तो एफ को डी डैश में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो निकाल देंगे एफ डी डैश। व्हाट इज एफ डी डैश, एफ है 20, डी डैश है -1, तो 20 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -20। नेक्स्ट 50 इंटू 0 कितना आ जाएगा, 0। नेक्स्ट 30 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 30। तो हमको मिल गया समेशन एफ डी डैश। समेशन एफ डी डैश कितना आया बेटा, समेशन एफ डी डैश मिला दो, 30 माइनस 20 कितना हो गया, 10। हमारा सारा कैलकुलेशन अभी ओवर हो गया। कौन कौन सा कैलकुलेशन किए, एक्स दिया था, एफ दिया था, डी निकाले, डी डैश निकाले, फिर एफ डी डैश निकाले, एफ डी डैश निकाले, समेशन एफ डी डैश निकाले, समेशन एफ डी डैश कितना आया, 10। अभी क्या करेंगे, फॉर्मूला डालेंगे और फॉर्मूला में सारा चीज डाल देंगे तो हमारा मीन निकल जाएगा। तो व्हाट इज मीन, मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन का फॉर्मूला अभी डालेंगे, मीन इजिकल टू, फॉर्मूला है मीन इजिकल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश बाई एन इंटू आई, दिस इज द फॉर्मूला। अभी क्या करेंगे, एक एक चीज को डालेंगे। व्हाट इज ए, ए इज इक्वल टू एज्यूम मीन, बेटा एज्यूम मीन किसको लिए थे, इसको एज्यूम मीन लिए थे 3000, 3000 इज एज्यूम मीन, तो 3000 प्लस समेशन एफ डी डैश, देखेंगे समेशन एफ डी डैश कहां पर है, यहाँ पर निकाले हैं समेशन एफ डी डैश। समेशन एफ डी डैश कितना है, 10 है, तो 10 डिवाइड बाय एन, एन कितना है, एन इजिकल टू समेशन एफ, एन इजिकल टू समेशन एफ कितना है, समेशन एफ यहाँ पर दिया हुआ है 100 इंटू आई, आई क्या है, कॉमन फिगर, बेटा कॉमन फिगर कितना लिए थे, आई लिए थे 1000, तो आई आ गया 1000, तो इंटू 1000 करेंगे, तो इंटू 1000, तो आ गया हमारा कितना 3000 प्लस इसको काटो, 2 2 0 कटा, 10 इंटू 10 100, तो आ गया 3100। बेटा जो भी मेथड डालो, डायरेक्ट मेथड डालो, नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड डालो या स्टेप डेविएशन मेथड डालो, तीनों में क्या आ जाएगा, एक ही वैल्यू आ जाएगा। ओके, सो आज के क्लास का थोड़ा समरी बनाएंगे। तो समरी क्या है, आज के क्लास में हम 3 फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो 3 फॉर्मूला क्या है, लिखेंगे समरी ऑफ फॉर्मूलाज, कौन सा सीरीज, समरी ऑफ फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज का।
डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला का समरी। कितना मेथड्स था? 3 मेथड था। कौन कौन सा मेथड? पहले मेथड पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में क्या था? मीन का फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला था मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाई एन। यहाँ पर एफ ही आता है, तो डायरेक्ट मेथड गया। नेक्स्ट वाला कौन सा मेथड? डी वाला मेथड, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड या अज्यूम मीन मेथड में मीन कैसे निकाले थे? मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? समेशन ए प्लस समेशन एफ डी बाई एन, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, मीन का फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड में, डायरेक्ट मेथड में गया, शॉर्टकट मेथड में गया। नेक्स्ट पढ़े कौन सा मेथड? स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में कैसे इसको बोलते हैं? कौन सा मेथड? शॉर्टकट मेथड को बोलते हैं डी वाला मेथड, और स्टेप डेविएशन मेथड को बोलते हैं डी डैश वाला मेथड, और इसको बोलते हैं एक्स वाला मेथड, डायरेक्ट को। तो इसको क्या फॉर्मूला था? आज पढ़े मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश बाई एन इंटू आई। These are the 3 formulas. These are the 3 summaries of our class of today. Okay, with this we conclude our discussion of today. In our next class we will discuss regarding continuous series, how to calculate what is mean in case of continuous series. Okay, so thank you for watching my videos, and I request you to subscribe to my channel. My channel is Commerce Forum. My channel is Commerce Forum. Kindly subscribe to my channel Commerce Forum. If you have any doubt, you can contact me in my email ID. My email ID is vishwamishra@gmail.com. vishwamishra@gmail.com. Thank you for watching my videos. Thank you.